صدر آصف علی زرداری اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی دوحہ میں ملاقات، دونوں رہنماؤں کا تاریخی اور برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ صدر مملکت نے امیر قطر کی بصیرت افروز قیادت میں قطر کی ترقی کو سراہا۔ امیر قطر کا آئندہ سال کے اوائل میں پاکستان کے دورے کا اعلان۔ قطر کو پاکستان اور اس کی کامیابیوں پر فخر ہے، امید ہے پاکستان اور افغانستان مسائل حل کر کے حالیہ چیلنجز پر قابو پا لیں گے۔ امیر قطر۔ صدر آصف علی زرداری سے قطر کے نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع شیخ سعود بن عبد الرحمن الثانی کی ملاقات، تربیت، استعداد کار، دفاعی پیداوار اور مشترکہ منصوبوں میں دو طرفہ تعاون پر اطمینان کا اظہار۔ قطر کے وزیر دفاع نے افواج پاکستان کی اعلیٰ پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا، مشترکہ دفاعی پیداوار اور منصوبوں کے فروغ کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان قطر کے ساتھ دفاعی اور اسٹریٹجک شراکت داری کے لیے پرعزم ہے: صدر مملکت۔ صدر آصف علی زرداری سے چین کے نائب صدر ہان جنگ کی دوحہ میں ملاقات۔ چین سے دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔ سی پیک کا دوسرا مرحلہ اعلیٰ معیار کی ترقی کے نئے دور میں داخل ہو چکا۔ دونوں ملکوں کا علاقائی اور عالمی فورمز پر قریبی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ پاکستان اور چین آہن برادرز اور ہر موسم کے اسٹریٹجک شراکت دار ہیں۔ صدر مملکت نے سی پیک منصوبوں کے لیے چین کے تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ چینی نائب صدر نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں اور علاقائی امن کے لیے کردار کو سراہا۔ ایران کی مجلس شورائے اسلامی کے اسپیکر ڈاکٹر محمد باقر کالیباف کی قیادت میں پارلیمانی وفد کی پاکستان آمد۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے نور خان ایئر بیس پر معزز مہمانوں کا پراتفاق استقبال کیا۔ ایرانی اسپیکر کی آمد باعث مسرت ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ڈاکٹر محمد باقر کالیباف نے کہا کہ پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہوئے دلی مسرت ہوئی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور کل سے ہوگا۔ مذاکرات میں حصہ لینے کے لیے پاکستانی وفد روانہ ہو چکا ہے۔ مذاکرات اسی وقت ہوتے ہیں جب کسی پیش رفت کی امید ہوتی ہے۔ خطے میں قیام امن کے لیے افغان طالبان رجیم دانش مندی سے کام لے۔ ہمارا مطالبہ ہے افغان سرزمین سے دہشت گردی نہ ہو۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی پارلیمنٹ کے باہر صحافیوں سے گفتگو۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلے۔ الیکٹرو بس کرایوں میں اضافے کی تجویز مسترد۔ ایئر پنجاب پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے قیام۔ کسانوں کے لیے چیف منسٹر ہائی ٹیک فارم میکنائزیشن فائنانس پروگرام کے تحت سبسڈی پروگرام کی منظوری۔ پنجاب میں انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں۔ کالعدم ٹی ایل پی پر پابندی کی باضابطہ توثیق۔ سرکاری اسکولوں میں اسکول ٹیچر انٹرنز کی بھرتی کی منظوری۔ تمام نمائندہ باڈیز، وہ پی بی اے ہو، اے پی این ایس ہو، سی پی این ای ہو، پی ایف یو جے ہو، این پی سی ہو، امینڈ ہو، یہ تمام باڈیز میں ان کو اپنی کانسٹیٹوئنسی سمجھتا ہوں اور ان کے مسائل کا حل میری اولین ترجیح ہے۔ ان کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے۔ صحافیوں کے مسائل کا حل ترجیح ہے۔ برطرف صحافیوں کو اگلے 48 گھنٹوں میں ملازمتیں دی جائیں گی۔ میڈیا ہاؤسز کو بروقت واجبات کی ادائیگی کی جا رہی ہے۔ بعض میڈیا ہاؤسز نے بغیر نوٹس صحافیوں کو نوکریوں سے نکالا۔ آئندہ ہفتے میڈیا مالکان کے ساتھ ملاقات میں یہ معاملہ اٹھایا جائے گا۔ میڈیا ورکرز کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ یہ سراسر ایک جھوٹا اور منفی پروپیگنڈا ہے کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کیا جا رہا ہے۔ میں بالکل گورنمنٹ کی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے، پرائم منسٹر کی طرف سے کیٹیگوریکلی یہ بات کر رہا ہوں، ہم کوئی بھی ایسا کام اس ترمیم میں نہیں کریں گے کہ جس سے وفاق کمزور ہو، جس سے صوبے کمزور ہوں۔ 27ویں ترمیم کے حوالے سے پروپیگنڈا بند ہونا چاہیے۔ ترمیم کا مقصد وفاق اور صوبوں کا رشتہ مضبوط کرنا ہے۔ 27ویں ترمیم میں 18ویں ترمیم کو رول بیک نہیں کیا جا رہا۔ سپریم کورٹ میں عام شہریوں کے کیسز تاخیر کا شکار ہیں۔ زیادہ وقت آئینی نوعیت کے کیسز پر صرف ہوتا ہے۔ آئینی اصلاحات قومی اتفاق کے ساتھ ہوں تو بہترین ہوگا۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری۔ سینیٹر فیصل وافڈا کی سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان سے اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ پر ملاقات۔ ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ آئینی ترمیم وقت کی ضرورت ہے۔ ملک فساد اور انتشار کی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان سے بات چیت ہوئی۔
مولانا فضل الرحمان نے ملک کی بہتری کے لیے ہمیشہ کردار ادا کیا ہے۔ سینیٹر فیصل واوڈا کی میڈیا سے گفتگو۔ پاکستان تاریخ کے اہم موڑ سے گزر رہا ہے۔ آئینی عدالت کا قیام ہونا چاہیے اور آئینی مقدمات اسی عدالت میں منتقل کیے جائیں۔ آئینی عدالت کے قیام پر کسی کو اعتراض، حیرانی اور پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ مقامی حکومتوں کو اختیارات دے کر مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ مقامی حکومتوں کے قوانین مزید وضع کرنے کی ضرورت ہے۔ جمہوریت کے ثمرات عوام تک پہنچنے چاہیے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنماؤں کی اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کرشنگ سیزن 15 نومبر سے شروع ہوگا۔ مقررہ تاریخ پر کرشنگ شروع نہ کرنے والے ملز کے خلاف کارروائی ہوگی۔ کسانوں کو واجبات کی ادائیگی کرشنگ کے آغاز سے قبل یقینی بنائی جائے گی۔ بر وقت کرشنگ سے گنے کے کاشتکاروں کو سہولت ملے گی۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین۔ ٹیکس اصلاحات مشاورت سے کی جا رہی ہیں۔ ریکوڈک منصوبہ ملکی معیشت کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ ریکوڈک منصوبہ سال 2028 میں باقاعدہ طور پر فعال ہو جائے گا۔ منصوبے سے پہلی بار برآمد کا تخمینہ $2.80 ارب لگایا گیا ہے۔ اگلے سال کا بجٹ FBR نہیں، ٹیکس پالیسی آفس بنائے گا۔ پائیدار معاشی استحکام کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کراچی چیمبر آف کامرس میں تقریب سے خطاب۔ ننکانہ صاحب میں سکھ مذہب کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک جی دیو جی مہاراج کے جنم دن کی تقریبات کا آخری روز۔ گردوارہ جنم استھان میں دعائیہ تقریب، وفاقی اور صوبائی وزراء کی مرکزی تقریب میں شرکت۔ نگر کیرتن کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات۔ سیف سٹی کیمروں سے روٹ کی مانیٹرنگ، کمانڈوز تعینات۔ آج رات 12 بجے بھوگ کی رسم اور اختتامی دعا کے ساتھ 556ویں جنم دن کی تقریبات کا اختتام ہوگا۔ بابا گرو نانک عظیم نظریاتی رہنما، امن، رواداری اور بین المذہب ہمانگی کا پیغام، ایک منصفانہ اور پرامن دنیا کے قیام کے لیے مشعل راہ۔ پاکستان تمام مذہبی اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم۔ کرتارپور راہداری قائم کر کے مذہبی رواداری کی منفرد مثال قائم کی۔ ہر سال دنیا بھر سے آنے والے سکھ یاتریوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی بابا گرو نانک کے 556ویں جنم دن کے موقع پر سکھ برادری کو دلی مبارکباد۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل یوم شہدائے جموں بھرپور عقیدت سے منائیں گے۔ شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مختلف تقریبات منعقد کی جائیں گی۔ مقبوضہ وادی کشمیر میں پوسٹرز چسپاں، شہدائے جموں کا خون ہرگز ضائع نہیں جائے گا۔ مقبوضہ علاقے میں بی جے پی کی ہندوتوا حکومت کی طرف سے مسلمانوں کی نسل کشی اور آبادی کے تناسب میں تبدیلی کی مذموم کوششیں نومبر 1947 کے بہیمانہ قتل عام کا تسلسل ہیں۔ حریت کانفرنس۔ نیو یارک میں میئر کے تاریخ ساز انتخابات، مسلمان امیدوار زہران ممدانی کامیاب۔ صدر ٹرمپ کے حمایت یافتہ نیو یارک کے سابق گورنر اور آزاد امیدوار اینڈریو کومو سمیت ریپبلکن حریف کریٹ سلوا کو شکست۔ 1969 کے بعد 20 لاکھ سے زائد ووٹرز کے ساتھ سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ ریکارڈ۔ زہران ممدانی 1892 کے بعد نیو یارک شہر کے میئر بننے والے سب سے کم عمر شخص ہیں۔ Thank you to the next generation of New Yorkers who refuse to accept that the promise of a better future was a relic of the past. نیو یارک میں اسلاموفوبیا کی کوئی گنجائش نہیں، نفرت اور تقسیم کی سیاست کی اجازت نہیں دیں گے۔ نیو یارک سٹی کو تارکین وطن نے مضبوط کیا، عوام کی توقعات پر پورا اتریں گے، موروثی سیاست کا خاتمہ کر دیا، نیو یارک کو ورکنگ کلاس کے لیے بہتر بنائیں گے۔ یہ شہر آپ کا ہے، جمہوریت بھی آپ کی ہے اور مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہے۔ نو منتخب میئر زہران ممدانی کا وکٹری خطاب۔
اسرائیلی فورسز کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری، مسلسل رکاوٹوں کے باعث فلسطینیوں کو خوراک سمیت امدادی سامان تک رسائی میں مشکلات درپیش۔ غزہ میں 24 لاکھ سے زائد افراد کو بھوک اور غذائی قلت کا سامنا ہے، اقوام متحدہ کے سروے میں انکشاف۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 میچز کی ون ڈے سیریز، دوسرا میچ کل دن 3 بجے اقبال سٹیڈیم فیصل آباد میں کھیلا جائے گا۔ سیریز میں قومی ٹیم کو 1-0 کی برتری حاصل۔ پہلے میچ میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو 2 وکٹ سے ہرایا۔ مقبوضہ کشمیر میں کرکٹ کے نام پر بین الاقوامی کھلاڑیوں کے ساتھ فراڈ۔ انڈین ہیون پریمیئر لیگ کے نام سے ٹورنامنٹ میں کرس گیل سمیت بین الاقوامی کھلاڑی شریک تھے۔ انتظامیہ اور لیگ مالکان پیسے دیے بغیر راتوں رات غائب ہو گئے۔ کھلاڑی ہوٹلز میں بیٹھے ہی رہ گئے۔ 1 ماہ کا ٹورنامنٹ 10 دن بعد ہی ختم۔ آسٹریلیا کے شان مارش اور بنگلہ دیش کے شکیب الحسن نے پہلے ہی لیگ میں شرکت سے انکار کر دیا تھا۔ اور 10ویں تھل جیپ ریلی کا کل سے آغاز، پہلے روز گاڑیوں کے رجسٹریشن اور معائنہ ہوگا۔ ملکی اور غیر ملکی مرد اور خواتین ریسرز حصہ لیں گے۔ 200 کلومیٹر سے زائد طویل ٹریک تیار۔ دوسرے روز کوالیفائنگ راؤنڈ، تیسرے روز اسٹاک کیٹیگری اور چوتھے روز پری پیڈ کیٹیگری کے مقابلے ہوں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں عظما چوہدری۔ کھیل کی خبریں لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا سمیع اقبال، اور موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، انہی خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔ تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق۔ 2 بچوں کے آج ایک فیصلے سے اپنے وسائل اور خاندان میں توازن کی بنیاد رکھیں اور خوشحال پاکستان کا خواب تعبیر کریں۔ خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مفت مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں۔ اپنوں کے روشن کل کے لیے دانشمندانہ فیصلہ کریں آج۔ متوازن خاندان، خوشحال پاکستان۔ ڈائریکٹریٹ جنرل بہبود آبادی، محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب۔ درست ہر وقت بر وقت۔ ویلکم بیک۔ صدر آصف علی زرداری اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے درمیان دوحہ میں ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور قطر کے درمیان دفاع، زراعت، دفاعی پیداوار اور غذائی تحفظ میں تعاون کے فروغ کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد مظہر عباس۔ دوحہ کے دیوان امیری میں ہونے والی ملاقات میں صدر آصف علی زرداری اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ صدر مملکت نے قطر کی ترقی اور امیر قطر کی بصیرت افروز قیادت کو سراہتے ہوئے حکومت پاکستان اور عوام کی جانب سے نیک تمناؤں کا پیغام پہنچایا۔ صدر مملکت نے دوحہ مذاکرات کی میزبانی اور افغانستان سے متعلق قطر کے کردار کو سراہا۔ امیر قطر نے امید ظاہر کی کہ پاکستان اور افغانستان موجودہ مسائل حل کر کے حالیہ چیلنجز پر قابو پا لیں گے۔ امیر قطر نے پاکستان کمیونٹی کے کردار کی تعریف کی اور ان کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ کرنے کی خواہش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ قطر کو پاکستان اور اس کی کامیابیوں پر فخر ہے۔ امیر قطر نے پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدے کو خوش آئند اور بر وقت قرار دیا۔ شیخ تمیم بن حمد الثانی نے کہا کہ پاکستان خطے میں منفرد حیثیت کا حامل ہے جو چین، مغرب اور خلیجی ممالک سے بیک وقت تعلقات رکھتا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے پاکستان اور قطر کے درمیان دفاع، زراعت، دفاعی پیداوار اور غذائی تحفظ میں تعاون کے فروغ کی تجویز دی۔ امیر قطر نے تعاون بڑھانے پر رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو فوری رابطوں کی ہدایت کی۔ امیر قطر نے صدر آصف علی زرداری کی دعوت قبول کرتے ہوئے آئندہ سال کے اوائل میں پاکستان کے دورے کا اعلان کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور پاکستان میں قطر کے سفیر بھی ملاقات میں موجود تھے۔ صدر آصف علی زرداری سے چین کے نائب صدر ہان ینگ نے بھی ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات دوحہ میں عالمی سربراہی کانفرنس کے موقع پر ہوئی۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان علاقائی اور عالمی فورمز پر قریبی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ اس موقع پر باہمی اعتماد و احترام، علاقائی خوشحالی کے ویژن پر مبنی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا بھی اظہار کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری نے چین کی جانب سے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کے ساتھ تعاون پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور چین آہنی بھائی ہیں اور تصویراتی شراکت دار ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ چین سے دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔
सी पैक का दूसरा मरहला आला मियार की तरक्की के नए दौर में शामिल हो चुका है। हान यंग ने चीन के सदर शी जिनपिंग की जानिब से नेक तमन्नाएं पहुंचाई और पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों और इलाकाई अमन के लिए किरदार को सराहा। चीन के नायब सदर का कहना था कि चीन सी पैक के दूसरे मरहले में पाकिस्तान की तरक्की में ताउन जारी रखेगा। सदर आसिफ अली जरदारी से कतर के नायब वजीर आजम और वजीर दिफा शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी ने भी मुलाकात की। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान और कतर के माबैन दिफाई और सलामती के ताल्लुकात को तारीखी और काबिल फख्र करार देते हुए तरबियत, इस्तेदादकार, दिफाई पैदावार और मुश्तरका मनसूबों में दो तरफा ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान कतर के साथ दिफाई और तजवीराती शराकत को मजीद फरोग देने के लिए पुरअज़्म है। कतरी वजीर दिफा ने अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा और मुश्तरका दिफाई पैदावार और मनसूबों के फरोग के अज़्म का इआदा किया। उन्होंने अफगान तनाज़े में किरदार अदा करने का भी यकीन दिलाया। इन मुलाकातों में सदर आसिफ अली जरदारी ने तिजारत, सरमायाकारी, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन की अहमियत पर जोर दिया। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, दोहा, कतर। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने पार्लियामेंट के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर कल से शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि खित्ते में क़याम अमन के लिए अफगान तालिबान रजीम दानिशमंदी से काम ले। उनका ये भी कहना था कि हमारा मुतालबा है कि अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी न हो। पेशरफ्त का इम्कानात होते हैं तो बातचीत की जाती है, अगर इम्कानात ना हों तो फिर वक्त का लिया ही है ना कि जो डेलीगेशन आज चला गया है और मुज़ाकरात कल सुबह शुरू हो जाएंगे। लेट्स होप कि कोई दानिशमंदी से काम लें अफगानिस्तान वाले भी और इस खित्ते में जो है हम जो है वो रिस्टोर किया जा सके। हमारी तो पॉइंट ये है कि अपनी सरजमीन से जो है पाकिस्तान के ऊपर हमले बंद करें। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगले हफ्ते आईनी तरमीम की कोई शक्ल निकल आएगी। तमाम सियासी जमातों से मुशावरत के बाद तफसीलात सामने लेकर आएंगे। ईरान की मजलिस शूरा इस्लामी के स्पीकर डॉक्टर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द की पाकिस्तान आमद। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने नूर खान एयरबेस पर वफ़द को खुशामदीद कहा। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, पार्लिमानी ताउन और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल हुआ। सरदार अयाज सादिक ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मजहब और सकाफत के मजबूत रिश्तों में बंधे हैं और दोनों ममालिक बाहमी रवाबित को मजीद फ़रोग़ दे सकते हैं। उन्होंने ईरान को इसराइली हमला नाकाम बनाने पर मुबारकबाद दी और कहा कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने हमले की खुलकर मजम्मत की। ईरानी स्पीकर ने इसराइली जारहियत के दौरान ईरान की हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने साबित किया कि मुश्किल वक्त का साथी ही हकीकी दोस्त होता है। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी से एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन के सदर शेख सलमान इब्राहिम हमीद अल खलीफा ने वफ्द के हमरा इस्लामाबाद में मुलाकात की। वफ्द में AFC के सेक्रेटरी जनरल दातोक सेरिवंट सरपाल जॉन और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सदर सैयद मोहसिन गिलानी भी शामिल थे। कायम मकाम सदर ने पाकिस्तान के फुटबॉल गवर्नेंस को मजबूत बनाने और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की मौसर कारकर्दगी को AFC और फीफा के मयार के मुताबिक यकीनी बनाने के अज़्म का अदा किया। सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि फुटबॉल के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना और मुल्क भर में यूथ एकेडमीज कायम करना ऐसे शोबे हैं जिनमें AFC की मुआवनत निहायत कीमती साबित होगी। कायम मकाम सदर ने पाकिस्तान में फुटबॉल की बहाली के लिए AFC की मुसलसल हिमायत को सराहा और इस बात पर जोर दिया कि मुल्की सतह के मुकाबलों को दोबारा फाल करने और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए इलाकाई और बैनुल अक़वामी सतह पर ज्यादा मौक़े पैदा करने की जरूरत है। और नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार से एशिया फुटबॉल कन्फेडरेशन के सदर शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा ने मुलाकात की। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में फुटबॉल के फ़रोग़ के लिए AFC के ताउन और नौजवानों के लिए खेलों के जरिए इलाकाई रवाबित को मजबूत बनाने में शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा के किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार को इलाकाई पेशरफ्त और आइंदा आने वाली आलमी मसरूफियात के हवाले से सेक्रेटरी खारजा और दफ्तर खारजा के दूसरे हुकाम ने जामे ब्रीफिंग दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने तस्वीराती दूरंदेशी, आलमी सतह पर फाल रवाबित के रहनुमा उसूलों पर मबनी पाकिस्तान की सिफारतकारी के हवाले से हिदायत दी। और यहाँ पर आपको अपडेट करते चलें कि वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में अहम फैसले किए गए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि अवामी खिदमत की नई मिसाल कायम करेंगे। रिपोर्ट कर रही हैं वर्दा सलीम।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत काबीना के 30वें इजलास का हर फैसला पंजाब के अवाम की उमंगों और रियासती जिम्मेदारी का अक्स बन गया। वजीर आला ने अवाम पर बोझ बढ़ाने की तजवीज मुस्तरद करते हुए मुल्तान, रावलपिंडी और लाहौर में इलेक्ट्रो बस किरायों में इजाफा रोक दिया। सूबाई काबीना ने कल अदम तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की बाज़ाब्ता तोसी करते हुए ये पैगाम दिया कि पंजाब में इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। पंजाब काबीना ने सरकारी स्कूलों में स्कूल टीचर्स इंटर्न की भर्ती, पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 और किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी की फराहमी के लिए चीफ मिनिस्टर हाई टेक फार्म मैकेनाइजेशन फाइनेंस प्रोग्राम के तहत सब्सिडी प्रोग्राम की मंजूरी दी। इस मौके पर वजीर आला को बताया गया कि हाई टेक फार्म मैकेनाइजेशन फाइनेंस प्रोग्राम के लिए 10,000 से ज्यादा एप्लीकेशन मौसूल हुई हैं। इस प्रोग्राम के तहत सुपर सीडर और दीगर जदीद आलात 60% सब्सिडी पर मुहैया किए जाएंगे। वजीर आला ने कहा कि माजी में मैकेनाइजेशन पर तवज्जो न देने की वजह से ज़राअत ज़बोहाली का शिकार हुई। काबीना ने लाहौर तक रावलपिंडी हाई स्पीड रेल के लिए MOU की मंजूरी दे दी, जबकि पाकिस्तान की फिजाओं में पंजाब की परवाज के आगाज के लिए काबीना ने एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कयाम की मंजूरी दे दी। काबीना ने मिस्र के साथ ज़राई इश्तराके कार के MOU और पंजाब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंसदाद तशद्दुद और इंतहा पसंदी के बोर्ड ऑफ गवर्नर की तश्कील की मंजूरी दी, जबकि ट्रैफिक जुर्माना और पॉइंट सिस्टम की मुजवजा असम्बली की भी मंजूरी दे दी गई। काबीना ने गुजरांवाला में मास ट्रांसिट अथॉरिटी का संग बुनियाद रखने, यूनिवर्सिटी ऑफ हाफिजाबाद के कयाम और मुख्तलिफ शोबों में भर्तियों की भी मंजूरी दी। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि हुकूमत सहाफ़ियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है, मसाइल को हल करेंगे। वज़ीर इत्तलात ने नुक्ता प्लेटफॉर्म से बरतरफ किए गए सहाफ़ियों को 48 घंटे में मुलाजमतें देने का ऐलान करते हुए कहा कि बाज़ मीडिया हाउसेस ने बगैर नोटिस सहाफ़ियों को नौकरियों से फारिग किया। सहाफ़ी तंजीमों के नुमाइंदा वफ़द से मुलाकात में ये तय पाया कि मामला आइंदा हफ्ते मीडिया मालिकान के साथ मुलाकात में उठाया जाएगा। हमने ये तय किया है कि जो चार्टर ऑफ डिमांड ये देंगे अगले हफ्ते में मीडिया मालिकान के सामने वो रखा जाएगा और PBA और APNS के साथ ये मुतालबात डिस्कस करके उनका कोई देर पा हल जो है वो निकाला जाएगा। अभी नुक्ता प्लेटफॉर्म से जितने जर्नलिस्ट को फारिग किया गया है अगले 48 घंटे में उन सबको हमने नौकरी देने का ऐलान किया और उन सबको जो है वो रिस्पेक्टिवली एम्प्लॉय किया जाएगा। तमाम नुमाइंदा बॉडीज, वो PBA हो, APNS हो, CPNE हो, PFUJ हो, NPC हो, अमेंड हो, ये तमाम बॉडीज मैं इनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी समझता हूँ और इनके मसाइल का हल मेरी अवलीन तरजीह है और मैं इनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि किसी के खिलाफ कोई विंडिक्टिव एक्शन नहीं है। इंशाअल्लाह ताला इनके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन के क़याम का अमल आखिरी मराहिल में है। सहाफ़ियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। इस्लामाबाद में PFUJ और RIUJ और प्रेस क्लब के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा कि सहाफ़ियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का निज़ाम मज़ीद मौसर और वसी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मीडिया हाउसेस को तारीखी वाजबात अदा किए हैं, इसके बावजूद मुलाजमीन की बरतरफियाँ काबिल तशवीश हैं। मीडिया मालिकान के साथ इस एजेंडे को बाकायदा तौर पर उठाया जाएगा। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि सहाफ़ी बरादरी के मसाइल हल करना हुकूमत की अहम तरजीह है। आज़ादी सहाफ़त और सहाफ़ियों के माशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दाम जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि नेशनल प्रेस क्लब के हवाले से चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल दरामद कराएंगे। मुलाकात में जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन के क़याम, सहाफ़ियों की गैर कानूनी बरतरफियों समेत दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल हुआ। वफ़द ने मसाइल के हल की यकीन दहानी पर वफाकी वज़ीर इत्तलात का शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि 27वीं तरमीम के हवाले से मफरूज़ों पर बात न की जाए, मनफी प्रोपेगेंडे बंद किए जाएं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद फैसल राव। कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफा शाह की सदारत में हुआ। इजलास में अपोजिशन की जानिब से उठाए गए इतराज के जवाब में वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम का मकसद वफाक और सूबों के दरमियान ताल्लुक को मजबूत करना है। आईनी इस्लाहात इत्तफाक राय से ही मुमकिन है। 27वीं तरमीम को मुतनाज़ा बनाने की मजम्मत करते हैं। ये सरासर एक झूठा और मनफी प्रोपेगेंडा है कि 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जा रहा है। मैं बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूं। हम कोई भी ऐसा काम इस तरमीम में नहीं करेंगे कि जिससे वफाक कमज़ोर हो, जिससे सूबे कमज़ोर हों या उनका बाहमी रिश्ता कमज़ोर हो। ये मुशावरत के बाद सारे स्टेक होल्डर्स बैठ के, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठ के हम बात करेंगे, तादियों से बात करेंगे, मुशावरत से तय होंगी। इसमें कोई भी
बुलडोज करने वाली बात नहीं है। वक्फा सवालात में मेंबरान की तरफ से पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए वफाकी वजीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि मार्का हक के बाद सब्ज पासपोर्ट को दुनिया भर में इज्जत मिल रही है। वफाकी वजीर ने कहा कि वजीर आजम की हिदायत पर इस्लामाबाद के पानी के मसले को हल करने के लिए अगले 50 साल के मंसूबे पर काम हो रहा है। पार्लिमानी सेक्रेटरी ज़ेब जाफर ने कहा कि हुकूमत ने PIA के खसारे को कम किया है और एयरलाइंस मुनाफे में जा रही है। तो जो दिलाओ नोटिस पर जवाब देते हुए सेहत के पार्लिमानी सेक्रेटरी नेल्सन अजीम ने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों और लेबोरेटरीज के चार्जेस को चेक करने के लिए मुतादिद इकदामात किए जा रहे हैं ताकि इलाज की सहूलत सबको यकसा मिल सके। ईवान में कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स और मुतादिद बिल्स भी पेश किए गए। कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई जुमा की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई। मोहम्मद फैसल राव, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान से सेनेटर फैसल वावडा ने इस्लामाबाद में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर फैसल वावडा का कहना था कि आईनी तरमीम वक्त की ज़रूरत है। मुल्क फसाद और इंतशार की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मौलाना फजल रहमान ने मुल्क की बेहतरी के लिए हमेशा किरदार अदा किया है। मौलाना साहब एक ज़ीरक सियासतदान है, देखिए उनके बिहाफ पे तो मैं कोई बात नहीं कर सकता। हम उनसे सीख सकते हैं, उनको सिखा नहीं सकते, नंबर एक। और मुस्बत बात यह है कि वो सब चीज़ें देखेंगे। उन्होंने ये तो नहीं कहा मैं कोई चीज़ देखूंगा नहीं, पाकिस्तान के मुफाद में है, उनको कोई चीज़ समझ आती है नहीं समझती, तो उनका फैसला है। जहाँ तक आपने सवाल किया कब तक होगा, तो आप कितना जल्दी जाते हैं मैंने तो आपको बता दिया, फ्राइडे या सैटरडे संडे भी कर देंगे और इस महीने के से बहुत पहले कर देंगे। MKM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार ने इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आईनी तरमीम पर हैरानी और परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आईनी अदालत के क़याम पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। मकामी हुकूमतों को इख्तियारात देकर मसाइल हल किए जा सकते हैं। मकामी हुकूमतों के कवानीन मजीद वज़ा करने की ज़रूरत है। जो हुकूमत के जानिब से हुकूमत ने मशावरत का सिलसिला शुरू कर दिया है और वज़ीर आज़म की गुफ्तगू से मुलाकात के बाद जो गुफ्तगू सामने आई, जो अंदाज़ा हमने लगाया उसमें यही है कि ये 27वीं आइनी तरमीम पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस, दफा और सूबों के दरमियान बेहतर हम आहंगी के लिए लाई जा रही है। इसके मज़ीद तकाज़े क्या होंगे वो आप पूछ सकते हैं वज़ीर क़ानून से। पाकिस्तान का आइन एक ज़िंदा दस्तावेज़ है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, जिसमें अब तक 26 तरमीम हो चुकी हैं और अवामी सहूलत, मुल्की मफादात और बेहतरी के लिए जब भी ज़रूरत पेश आती है आइन में तरमीम की गई है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान को मौशी लिहाज से मुस्तहकम करने के लिए एक सुनहरी मौका है, क्योंकि आलमी सतह पर चीन और सऊदी अरब समेत दोस्त ममालिक भरपूर ताउन कर रहे हैं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि मईशत की बहाली के लिए निजी शोबे का किरदार नहायत अहम है। उन्होंने कहा कि बैंकारी शोबे को चाहिए कि वो निजी कारोबार के फ़रोग़ के लिए सहूलतें फ़राहम करें ताकि रोज़गार के मौके बढ़ें और सनअती तरक्की मुमकिन हो। वज़ीर ख़ज़ाना ने मज़ीद कहा कि हुकूमत पायदार माली इस्तेहकाम के लिए इस्लाहाती इक़दाम कर रही है और कारोबारी तबके के साथ मुसलसल मुशावरत जारी रखी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से साबिक़ रुकन कौमी असम्बली चौधरी जाहिद इकबाल ने लाहौर में मुलाकात की। उन्होंने हल्का NA 143 के ज़िमनी इंतखाबात में दस्तबरदारी का ऐलान करते हुए नून लीग के उम्मीदवार चौधरी तुफैल जट की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया। वज़ीर आला ने कहा कि अवाम नून लीग के साथ हैं। उन्होंने चौधरी जाहिद इकबाल की दस्तबरदारी को सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि बाबा गुरु नानक देव जी अमन, रवादारी और मसावात के अलंबरदार थे। सदर ममलिकत ने अपने पैगाम में बाबा गुरु नानक देव जी के 556वें जन्मदिन के मौके पर सिख बिरादरी को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि बाबा गुरु नानक की तालीबात मोहब्बत, खिदमत इंसानियत और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का अजीम दरस देती हैं। सदर ममलिकत ने कहा कि पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी के क़याम के जरिए सिख यात्रियों के लिए वीज़ा फ्री रसाई मुमकिन बनाकर मजहबी रवादारी की मुनफरिद मिसाल कायम की। पाकिस्तान अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और उनके मुक़द्दस मकामात की देखभाल यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बाबा गुरु नानक देव जी के 556वें जन्मदिन के मौके पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाली सिख बिरादरी को दिली मुबारकबाद पेश की है।
अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि बाबा गुरु नानक ने पूरी इंसानियत के लिए अमन, बराबरी, रवादारी, मोहब्बत, बैल मज़हब, हमआहंगी और बर्दाश्त का पैगाम दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान तमाम मजहबी अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने गैर मुतज़लज़ल अज़्म पर कायम है और हर साल दुनिया भर से आने वाले सिख यात्रियों की सहूलत के लिए तमाम ज़रूरी इंतज़ामात करता है। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की मरकजी तकरीब गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहिब में हुई। तफसील बता रहे हैं वसीम सज्जाद। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की तकरीब गुरुद्वारा जन्मस्थान ननकाना साहब में हुई। वफाकी और सूबाई वज़रा ने पूरी दुनिया से आए सिख यात्रियों को गुरु नानक के जन्मदिन की मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान की सरजमीन तमाम मज़ाहब के लिए एहतराम की धरती है। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि सिखों के लिए पाकिस्तान के दरवाजे हमेशा खुले हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर सिख यात्रियों के लिए मिसाली इंतजामात किए गए हैं और आज पाकिस्तान से अमन और मोहब्बत का पैगाम पूरी दुनिया में जा रहा है। पाकिस्तान एक मेहमान नवाज मुल्क है जो अपने मेहमानों की खिदमत और एहतराम में कोई कमी नहीं रखता। हमारे दोनों ममालिक के दरमियान अमन और दोस्ती की खिते की खुशहाली और तरक्की के लिए नहायत जरूरी है और जो इस वक्त दूरी है उसको जिस तरीके से आप आए इस तरीके से लोग इसको दूर कर सकते हैं, इस दूरी को खत्म भी करा सकते हैं। मजहबी अमूर के वजीर मुमलिकत खेलदास को हस्तानी ने कहा कि पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब का एहतराम किया जाता है और हम आज के दिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश करते हैं कि उनकी क़यादत में हमारे नौजवानों ने दहशत गर्दों को शिकस्त दी और मुल्क में अमन कायम किया। हम तो मोहब्बत चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते हैं, हम तकसीम नहीं चाहते हैं। अगर कोई जंग करेगा तो हम जंग करेंगे, अगर कोई अमन की बात करेगा तो हम अमन की बात करेंगे। मौसमियाती तब्दीली की वजीर मुमलिकत डॉक्टर शजरा मनसब और सूबाई वजीर अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने भी तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि बाबा गुरु नानक ने दुनिया को इंसानियत के एहतराम का दर्स दिया। भारतीय सिख यात्रियों के जत्था लीडर सरदार रविंदर सिंह ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट मैच हो सकता है तो मजहबी यात्रा भी हो सकती है, जिसके लिए खुले दिल का मुजाहरा करना होगा। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानों को सरोपे पहनाए गए। वसीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। कंट्रोल लाइन की दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी कल यौम शोहदाए जम्मू इस अज़्म की तजदीद के साथ बनाएंगे कि वो गैर कानूनी भारतीय तसल्लुत से आज़ादी और हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक महाराजा हरि सिंह की फोर्सेस भारतीय फौज और हिंदुत्व कुव्वतों ने नवंबर 1947 के पहले हफ्ते में जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में लाखों कश्मीरियों का उस वक्त कत्लेआम किया था जब वो पाकिस्तान की तरफ हिजरत कर रहे थे। शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए बैरून ममालिक में भी मुख्तलिफ तकरीबात मुनक़िद की जाएंगी। शोहदाए जम्मू और दीगर तमाम शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए कुरान ख़वानी और मकबूजा जम्मू कश्मीर की भारतीय तसल्लुत से जल्द आज़ादी के लिए खुसूसी दुआओं का भी एहतमाम किया जाएगा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर से जारी एक बयान में शोहदाए जम्मू को शानदार खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि उनका खून हरगिज़ ज़ाया नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि 1947 में जम्मू के मुसलमानों का दिल दहला देने वाला कत्लेआम दुनिया के सबसे बड़े सानहात में से एक है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की हिंदुत्व भारतीय हुकूमत की तरफ से मकबूजा इलाके में जारी मुसलमानों की नस्लकुशी और आबादी के तनासुब में तब्दीली की मज़मूम कोशिशें नवंबर 1947 के बहिमाना कत्लेआम का तसलसल हैं। श्रीनगर और वादी कश्मीर के दीगर इलाकों में पोस्टर चस्पा किए गए हैं जिनके जरिए शोहदाए जम्मू को शानदार खिराज अकीदत पेश किया गया है। मुख्तलिफ आज़ादी पसंद तंजीमों की तरफ से चस्पा किए गए पोस्टर्स में लिखा गया है कि शोहदा के मिशन को हर कीमत पर उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। भारतीय फौजियों के हाथों 6 नवंबर 1947 को होने वाला हौलनाक कत्लेआम, हजारों मुसलमानों को शहीद किया गया। इस दिन का तारीखी पस मंजर बता रहे हैं मुजफ्फराबाद से अदील अहमद खान। 6 नवंबर 1947 इंसानी तारीख का वो स्याह तरीन दिन है जब डोगरा हुक्मरान हरि सिंह की फौज और मुसल्लह जत्थों ने जम्मू में 2.5 लाख से जायद कश्मीरी मुसलमानों का कत्लेआम किया था। डोगरा फौज ने हिंदू बलवाइयों और सिख जत्थों के साथ मिलकर निहत्ते और मजलूम कश्मीरियों को गाजर मूली की तरह काटा था और लाखों मुसलमानों को हिजरत पर मजबूर किया था, जिसका मकसद जम्मू में मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करना था। तो जम्मू के मुसलमानों को उस वक्त की हुकूमत ने इस माने इकट्ठे किया कि अगर आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं तो आए आपको पाकिस्तान भेजते हैं। तो जब लाखों लोग एक जगह इकट्ठे हो गए तो उन्होंने इन पे बदतरीन तशद्दुद किया। जम्मू में मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में बदलने का जो उनका मंसूबा था उस पर उन्होंने अमल किया और 6 नवंबर 1947 से लेकर आज तक कश्मीरी तकमील पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। 6 नवंबर 1947 के शोहदा की याद में हर साल 6 नवंबर का दिन यौम शोहदाए जम्मू के तौर पर मनाया जाता है और इस सिलसिले में कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ जलसे जुलूसों और रैलियों का इनेकाद करके
जम्मू के शहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया जाता है। आदिल अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद। अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क की सियासत में नई तारीख रकम। ज़हरान मुमदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान और जनूबी एशियाई निजात मेयर मुंतखब हो गए। आपको दिखाएंगे असलान असद की ये रिपोर्ट। न्यूयॉर्क के मेयर के इंतखाब में 34 साल डेमोक्रेट उम्मीदवार ज़हरान मुमदानी ने कामयाबी हासिल करते हुए कई नए रिकॉर्ड भी बना दिए। 1991 में युगांडा में पैदा होने वाले और बचपन में न्यूयॉर्क मुंतकिल होने वाले ज़हरान मुमदानी अमरीकी सदर के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार एंड्रियो कोमो को वाज़े फर्क से शिकस्त देकर 84 लाख से ज्यादा नफूस पर मुश्तमिल न्यूयॉर्क शहर के मेयर मुंतखब हो गए। वो गुज़श्ता 100 बरसों में न्यूयॉर्क के सबसे कम उम्र मेयर होंगे। अपनी पहली तकरीर में ज़हरान मुमदानी ने कहा कि ये तमाम जमहूरियत पसंदों की फतह है। अमीरों का शहर कहलाने वाले न्यूयॉर्क को वर्किंग क्लास के रहने के काबिल बनाऊंगा। Thank you to the next generation of New Yorkers who refuse to accept that the promise of a better future was a relic of the past. You showed that when politics speaks to you without condescension, we can usher in a new era of leadership. We will fight for you because we are you. ज़हरान मुमदानी का ताल्लुक मुतवसत खानदान से है। उनके वालिद महमूद मुमदानी सियासत के माहिर प्रोफेसर, जबकि उनकी वालदा मेरा नायर भारत में फिल्म साज रह चुकी हैं। उनकी इंतखाबी मुहिम आम लोगों के मसाल के गिर्द घूमती रही। महंगी रिहाइश, बढ़ती हुई कीमतें, महंगाई और सबके लिए काबिल रसाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सब वो मौज़ूआत थे जो उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम में उजागर किए। मुमदानी की सादा मगर पुरजोश मुहिम ने अकलियतों, नौजवानों और इमिग्रेंट आबादी का दिल जीत लिया। ज़हरान मुमदानी 1 जनवरी को अपना ओहदा संभालेंगे। उनकी कामयाबी सिर्फ एक इंतखाब ही नहीं बल्कि इस बात की अलामत है कि अमेरिका में मौरूसी सियासत की बजाय अब नई नस्ल आगे आ रही है। असलान असद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। और बुलेटिन में यहाँ पर आपको अपडेट करते चलें गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल से। इसराइल की जानिब से गजा में खुराक समेत इमदादी सामान की फ्राहमी में मुसलसल रुकावटों का सिलसिला जारी है। जंग बंदी के बाद भी फ़लस्तीनियों की खुराक तक रसाई में कोई बेहतरी नहीं हुई। अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक ये इंकिशाफ गजा में मुकीम निस्फ से ज़्यादा घरानों ने अक़वाम मुत्तहिदा के एक सर्वे में किया है। गजा में 24 लाख से ज़्यादा अफराद को भूख और ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। इसराइली फोर्सेस की तरफ से जंग बंदी माहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। फ़लस्तीनी वफ़ा न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने मकबूजा मशरक़ी बैतुल मक़दिस के शिमाल में वाक़े शिफ़ात पनाहगुज़ीन कैंप पर भी छापा मारा और आंसू गैस का अंधाधुंध इस्तेमाल किया। सिहूनी हुकूमत ने इसराइली जेलों में शहीद होने वाले 45 फ़लस्तीनियों की मैयतें वज़ारत सेहत के हवाले की। उधर इसराइली फोर्सेस की तरफ से लबनान पर फ़िज़ाई हमलों में भी 2 अफराद जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। वज़ीर कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ राना तनवीर हुसैन की सदारत में शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास हुआ। क्रशिंग सीजन 15 नवंबर से शुरू करने का फैसला किया गया है। राना तनवीर हुसैन का कहना था कि फैसला तमाम सूबों और पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन से मुशावरत के बाद किया गया है। जो शुगर मिल मुकर्रर तारीख पर क्रशिंग शुरू नहीं करेगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि किसानों को वाजबात की अदायगी क्रशिंग के आगाज से कबल यकीनी बनाई जाएगी। बरवक्त क्रशिंग से काश्तकारों को सहूलत मिलेगी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हुकूमत की अवाम दोस्त पॉलिसीज़ की बदौलत दीगर महकमों की तरह रेलवे ने भी तरक्की की है। तफसील बता रहे हैं हाफिज मोहम्मद अली आबिद। रेलवे के वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी ने अपने फैसलाबाद के दौरे के दौरान रेलवे स्टेशन की तज़ीन व आराइश शुदा इमारत का इफ्तिताह किया। वो स्टेशन के मुख्तलिफ हिस्सों में गए और वहाँ अमले की कारकर्दगी का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत रेलवे के निज़ाम में इनकलाब ले आई है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों की तज़ीन व आराइश करके उन्हें जदीद सहूलतों से आरास्ता किया गया है और ये काम हुकूमत ने रिकॉर्ड कलील मुद्दत में किया है। उन्होंने कहा कि सैलाब से मुतासर रेलवे ट्रैक रेलवे के मजदूरों और इंजीनियर्स ने दिन रात मेहनत करके बहाल कर दिए हैं। हनीफ अब्बासी ने कहा कि वजीर आजम की पॉलिसियों की बदौलत दीगर महकमों समेत रेलवे भी तेजी से तरक्की कर रहा है। आउटसोर्सिंग के हवाले से और ओपन ऑक्शन के हवाले से जो वजीर आजम की पॉलिसी है, हम गए हैं, हमें 10 बिलियन का इसी फाइनेंशियल ईयर में फाइनेंशियल इम्पैक्ट आएगा। इसके साथ हम न्यू कार्गो सर्विस एक और चलाने जा रहे हैं, 3 कोल की नई ट्रेन चलाने जा रहे हैं। वफाकी वजीर ने कहा कि जंग में शिकस्त खाने के बाद भारत जख्म चाट रहा है और तरह तरह की साजिशों में मसरूफ है, लेकिन अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की इज्जत को दुनिया में मजीद बढ़ा दिया है। 10 मई से पहले
पाकिस्तान का वो मुकाम नहीं था जो आज हमारे शोहदा की बदौलत, हमारे शाहीनों की बदौलत, हमारे आर्मी चीफ की बदौलत और वजीर आज़म पाकिस्तान की कामयाब तरीन खारजा पॉलिसी के नतीजे में चाइना भी आपके साथ खड़ा है, यूएसए भी, रशिया भी, मिडल ईस्ट की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, सेंट्रल एशिया की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, तो इससे बड़ा और क्या मुकाम है। वफाकी वजीर ने कहा कि अगर भारत ने दोबारा जारहियत की कोशिश की तो पहले से भरपूर जवाब दिया जाएगा। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। वफाकी वजीर और सदर मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा इंजीनियर अमीर मकाम की ज़ेर सदारत पार्टी के अज़ला के सदूर और जनरल सेक्रेटरीज का इजलास इस्लामाबाद में मुनक़िद हुआ। इजलास में तंजीमी उमूर और पार्टी की फ़ालियत पर तफसीली गौर किया गया, जबकि शुरका ने मुत्तफ़क़ा करारदादों के जरिए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, इंजीनियर अमीर मकाम और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया। इंजीनियर अमीर मकाम ने ज़िला सतह पर कन्वेंशन के इनेकाद, सोशल मीडिया पर पार्टी की कारकर्दगी उजागर करने और एक माह में तंजीम साजी मुकम्मल करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 13 बरसों में PTI हुकूमत की नाकामियों को आवाम के सामने लाया जाए, जबकि पाकिस्तान की मौजूदा कामयाबियाँ वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुतहरिक क़यादत का नतीजा है। IT और टेलीकॉम के वफाकी वजीर शिजा फातिमा ख्वाजा ने नेशनल रेडियो टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन हरीपुर का दौरा किया और गूगल क्रोम बुक असेंबली लाइन मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। तफसील बता रहे हैं अनीसा वान। IT और टेलीकॉम के वफाकी वजीर शिजा फातिमा ख्वाजा ने हरीपुर में कायम NRTC का दौरा किया। इस मौका पर अमरीकी नाज़मुल उमूर निटाली ए बेकर भी इनके हमरा थीं। वफ्द में गूगल ग्लोबल के मैनेजिंग डायरेक्टर और कंट्री डायरेक्टर समेत दीगर हुकाम भी शामिल थे। हुकाम की जानिब से वफ्द को NRTC के इकदामात और क्रोम बुक असेंबली लाइन मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। शिजा फातिमा ख्वाजा ने क्रोम बुक असेंबली लाइन का दौरा किया और यहाँ बनने वाली डिवाइसेस का मुआयना भी किया। ये मंसूबा गूगल, एलाइड ऑस्ट्रेलिया, NRTC और टेक वैली पाकिस्तान के इश्तराक से शुरू किया गया है। इस मौका पर वफाकी वजीर शिजा फातिमा ख्वाजा ने कहा कि ये मंसूबा पाकिस्तान की डिजिटल और माशी खुदनिसारी की जानिब एक संग मील है, जिससे मकामी सतह पर नौजवानों को सस्ती और मायारी डिजिटल डिवाइसेज दस्तियाब होंगी और रोजगार के मौके पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब सॉफ्टवेयर सर्विसेज से हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग की जानिब अमली कदम बढ़ा चुका है। शिजा फातिमा ने इस अज़म का इजहार किया कि हुकूमत पाकिस्तान टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल तरक्की के फरोग के लिए पुरअज़म है, जिससे मुल्क की IT बरामदाद में भी इजाफा होगा। अनीसा वान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर IT और टेलीकॉम शिजा फातिमा ने कहा है कि डिजिटल नेशन पाकिस्तान वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के विजन का तसलसल है। कनेक्ट पाकिस्तान 2030 के तहत हर फर्द तक तेज रफ्तार इंटरनेट की फराहमी का हदफ है। मज़ीद बता रहे हैं सईद वज़ीर। वफाकी वजीर IT शिजा फातिमा ख्वाजा ने इस्लामाबाद में 26वीं साउथ एशियन टेली कम्युनिकेशन रेगुलेटर्स कौंसिल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि डिजिटल पाकिस्तान का बुनियादी सतून मजबूत और जामे कनेक्टिविटी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इलाकाई डिजिटल ताउन और मुश्तरका तरक्की के लिए हर सतह पर तैयार है। टेलीकॉम सेक्टर ने कौमी खजाने में 1.5 ट्रिलियन रुपए से जायद अदायगी की है। It is an opportunity to redefine our region's development trajectory. It is an opportunity to keep up pace with the rest of the world through effective inclusion and cooperation. Today, as we stand here, South Asia is at an inflection point. We are looking at an unprecedented growth of demand across the region, but that also highlights the gaps that exist today within the region and across regions. चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हाफिजुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में रेगुलेटरी अहमहांगी और ताउन के फरोग में कायदाना किरदार अदा कर रहा है। Over the years, the SATRC has become a key vehicle for policy coordination, knowledge sharing and regulatory harmonization in our sub-region. Through the action plan and working groups, that is 9 and 2 working groups, SATRC has promoted consensus-based approaches on emerging technologies, spectrum management, cyber security and digital inclusion. तकरीब से दीगर मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। इलाकाई सतह पर मुश्तरका इक़दामात डिजिटल तब्दीली को मुनसिफाना और मुअस्सर बना सकते हैं। सईद वज़ीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची में 2 रोज़ा द फ्यूचर समिट का आगाज हो गया। फ्यूचर समिट की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आला सिंध, वफाकी वज़रा और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे ज़ीशान अहमद खान।
دی फ्यूचर समिट की कराची में इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि मौजूदा दौर में माशी नई सिमत का तयन वक्त की अहम जरूरत बन चुका है, ताहम टेक्नोलॉजी पार्क से क़याम के लिए वफाकी हुकूमत के ताउन की जरूरत है। Our government has introduced reforms that simplify business processes, strengthen public-private partnerships, and ensure that infrastructure development aligns with sustainability and equity. From Sindh's people housing for flood affectees to Karachi Safe City, from Sharai Bhutto to green projects, our approach is pragmatic, forward-looking, and people-centered. But equally, we recognize that the greatest infrastructure we can build is the human mind. वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने समिट से खिताब में कहा कि आलमी मईशत में इस्तेहकाम के लिए निजी शोबे का किरदार कलीदी है। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की कंपनियों की बढ़ती हुई दिलचस्पी पाकिस्तान की मईशत पर एतमाद की अलामत है, जो इस्लाहाती इक़दामात के मज़बूत नताइज को ज़ाहिर करती है। The Egyptian finance minister walked up to me and said कि जी हम यही इस किस्म की इस्लाहात इजिप्ट में लाना चाहते हैं, तो या मैं अपनी टीम यहाँ भेजूंगा या आप अपनी टीम हमें यहाँ भेज दें। तो देखें ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम बात तो बहुत कर सकते हैं कि जी इस्लाहात हैं कि नहीं है। If these are getting recognition, वफाकी वजीर बराए माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने अपने खिताब में कहा कि एक मजबूत और पायदार माशरा उसी वक्त कायम हो सकता है जब बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाया जाए। तकरीब में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने भी शिरकत की। फैसल करीम कुंडी ने खैबर पख्तूनख्वा में तवानाई, मादनियात, सयाहत और ज़राअत के शोबों में सरमायाकारी की दावत देते हुए कहा कि सूबाई हुकूमत सरमायाकारों को महफूज और साजगार माहौल फराहम करेगी। दी फ्यूचर समिट से मुख्तलिफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बैंकर्स और माहिर माशियात व दीगर मुकर्रीन ने भी खिताब किया। माहिरीन मईशत और पॉलिसी साजों ने इस बात पर इत्तफाक किया कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जदीदियत, तहकीक, टेक्नोलॉजी और पायदार तरक्की से जुड़ा है और वक्त का तकाजा भी यही है कि हम अपनी मुआशी तरक्की के लिए काम करें। ज़ुशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल खान ने मौसमी तब्दीली और इसके चैलेंजेस को मौक़ों में बदलने के लिए हुकूमत के इक़दामात को वक्त की ज़रूरत करार दिया है। अमादवान की रिपोर्ट देखिए। इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में पायदार तरक्की के लिए SDPI की 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राना एहसान अफजल ने इन इक़दामात पर रोशनी डाली जिनकी मदद से मौसमियाती खुशहाली की तरफ वापस लौटा जा सकता है। This is not a climate crisis anymore, ladies and gentlemen. It is a national economic emergency. We are building our own model of climate prosperity. Our federal budget of 2025-26 is our country's first fully climate-tagged budget. राना एहसान अफजल ने कॉन्फ्रेंस के शुरका की मौसमियाती खुशहाली के लिए की जाने वाली काविशों को सराहा और क्लाइमेट प्रॉस्पेरिटी प्लान के निफाज पर जोर दिया। The focus is on solar and wind, greening our grid through NTDC upgradations. You have started seeing EV buses coming in to different cities across Punjab. This will be a big step towards mitigation. Rupees 85 billion for adaptation, flood walls in Sindh, drought-resistant wheat in Punjab, glacier monitors in Hunza. राना एहसान अफजल ने कॉन्फ्रेंस के दौरान क्लाइमेट रेजिलिएंट डायलॉग में भी शिरकत की। मुकालमे में बांग्लादेश की डॉक्टर फहमीदा खातून और ऑनलाइन शिरकत करने वाले मारूफ स्कॉलर्स ने भी हिस्सा लिया। मुकालमे में शिरकत करने वालों ने मौसमियाती चैलेंजेस से बचाव के लिए मुश्तरका काविशों को आलमी सतह पर तेज करने पर जोर दिया ताकि इस ग्लोब पर रहने वाले हर जीरू को इन खतरात से निकाला जा सके। अमादवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कोयटा में चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मसूद अहमद खान ने तलबा से खिताब करते हुए कहा कि बलूचिस्तान के नौजवान बासलाहियत हैं। हुकूमत उन्हें IT और दीगर शोबों में तरबियत और रोजगार के मौके फराहम कर रही है। नौजवान आगे बढ़े, रियासत उनके साथ खड़ी है। राना मसूद ने कहा कि विफाक नौजवानों के स्किल ट्रेनिंग के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है और वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम में मजीद तौसीक़ की जाएगी। रवा साल बलूचिस्तान के नौजवानों को ज़राई कर्जे और स्टार्टअप लोन्स फराहम किए जा रहे हैं। बलूचिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला यूथ इनिशिएटिव के मरबूत हिकमत अमली के तहत यकजा करने का फैसला कर लिया गया, जबकि सूबे के 7 अजला में एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी आगाज कर दिया गया है। इन ख्यालात का इज़हार वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मसूद अहमद खान और सूबाई वज़ीर अली हसन जहरी की मौजूदगी में नौजवानों की बहबूद से मुतालिक आला सतह इजलास की सदारत करते हुए किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से कैनेडियन हाई कमिश्नर तारिक अली खान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की।
ملاقات میں زراعت، قابل تجدید انرجی، ڈیری، پولٹری کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر پنجاب نے کینیڈین ہائی کمشنر کو پاکستان میں ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دی اور نئے خواہشات کا اظہار کیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ پاکستان میں ڈیری، میٹ، زراعت اور ٹیکسٹائل کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ کینیڈین ہائی کمشنر طارق علی خان نے پاکستان اور کینیڈا کے درمیان تجارت سمیت دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، سیاحتی مقام ناران نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ وادی کے برف پوش پہاڑ برف سے ڈھکے بٹا کنڈی سے خوبصورت جھیل لولو سر تک خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں۔ کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور NHA کی مشینری نے سڑک سے برف ہٹا کر ناران سے بیسر جھیل لولو سر تک سڑک کو کھول دیا ہے۔ گزشتہ روز بیسر کے ہوٹل میں رکے ہوئے سیاحوں کی گاڑی کو ناران پہنچا دیا گیا۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں سرد رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں ہلکی دھند اور سموک چھائے رہنے کی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کالام -4، لہ -2، گوپے سستور اور زیارت میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، کھیل میں خوش آمدید۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان ون ڈے سیریز کا دوسرا میچ کل اقبال سٹیڈیم فیصل آباد میں کھیلا جائے گا۔ 3 میچز کی سیریز میں قومی ٹیم کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ پہلے میچ میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو 2 وکٹوں سے ہرایا۔ سیریز کا تیسرا میچ ہفتے کو فیصل آباد میں ہی کھیلا جائے گا۔ جنوبی افریقہ کے جارح مزاج بلے باز ڈیوال بریوس انجری کے باعث پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز سے باہر ہو گئے۔ 22 سالہ بریوس کو قذافی اسٹیڈیم میں تیسرے T20 میچ کے دوران کندھے میں چوٹ لگی تھی۔ اسکین سے پتہ چلا ہے کہ ان کے کندھے میں کھچاؤ ہے جس کے باعث وہ ون ڈے سیریز میں شرکت نہیں کر پائیں گے۔ اور مقبوضہ کشمیر میں کرکٹ کے نام پر انٹرنیشنل کھلاڑیوں کے ساتھ فراڈ ہو گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق انڈین ہیون پریمیئر لیگ کے نام سے ٹورنامنٹ میں بین الاقوامی کھلاڑیوں کو مدعو کیا گیا، جبکہ شان مارش اور شکیب الحسن نے مدعو کرنے کے باوجود ٹورنامنٹ میں شرکت سے انکار کر دیا۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ کھلاڑیوں کو پیسوں کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے ٹورنامنٹ ملتوی کرنا پڑ گیا۔ ٹورنامنٹ کی انتظامیہ اور لیگ کے مالکان پیسے دیے بغیر راتوں رات غائب ہو گئے، جس کے باعث ویسٹ انڈیز کے کرس گیل بھی ٹورنامنٹ بیچ میں چھوڑ کر چلے گئے۔ لیگ 25 اکتوبر سے 8 نومبر تک کھیلی جانی تھی، لیکن کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ امپائرز اور ہوٹل مالکان کو بھی ادائیگی نہیں ہوئی۔ 10ویں تھل جیپ ریلی کا آغاز کل سے ہوگا۔ ریلی کے کامیاب انعقاد کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ 4 روز تک جاری رہنے والے ایونٹ میں ملک کے معروف ریسرز حصہ لیں گے۔ تفصیل جانیے سردار برال چانڈیو سے۔ 10ویں تھل جیپ ریلی میں ملکی اور غیر ملکی 100 سے زائد مرد اور خواتین ریسر حصہ لیں گے۔ تھل جیپ ریلی کے لیے ضلع کوٹ ادو، مظفر گڑھ اور لیا کے علاقوں پر مشتمل 200 کلومیٹر سے بھی زائد طویل ریتلا اور دشوار گزار ٹریک تیار کر لیا گیا ہے۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ اس وقت کی جو ہماری ریلی ہوگی یہ ہم بہترین انداز میں اس کا انعقاد کروائیں گے، اور اس کے لیے ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے بھی خصوصی طور پہ میجرز لیے ہیں، اقدامات کیے ہیں، اور ان کے جو نمائندے ہیں وہ روٹ کی کوالٹی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق بنائیں۔ انشاءاللہ پہلی دفعہ جو ہے انٹرنیشنل ریسرز آ رہے ہیں جو اس میں شریک ہو رہے ہیں، تو ہماری یہ تھل جیپ ریلی صرف ساؤتھ پنجاب کی ثقافت پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اجاگر کر رہی ہے انشاءاللہ۔ 6 نومبر کو گاڑیوں کی رجسٹریشن، ٹیگنگ، ڈرائیور اور گاڑیوں کا معائنہ ہوگا۔ 7 نومبر کو چھنگا منگا ٹیلے پر ریلی کا کوالیفائنگ راؤنڈ ہوگا۔ 8 نومبر کو سٹاک کیٹیگری کے مقابلے ہوں گے، جبکہ فائنل راؤنڈ یعنی پری پیڈ کیٹیگری کے مقابلے 9 نومبر کو ہوں گے۔ سردار بلال چانڈیو، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کوٹ ادو۔ اور سپورٹس نیوز کے ساتھ ہی خبرنامہ ہوا مکمل۔ ہمیں اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ دیجیے اجازت۔ PTV نیوز پر یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔